and and the corresponding techno-legal steps that societies need to take to contain the risks have been deliberated. GPay is a very vibrant organization where the global community is coming to a consensus on AI. Today we are holding a seminar, a conference where the experience of the last 1 year will be discussed. And as you are aware, in many countries, lots of activity related to containing the risks related to AI has happened. There is a regulation, already a law has been passed in EU. US has passed an executive order. Globally, the UN has set up a separate body to deliberate about AI. Similarly, many countries are thinking of how to contain the risk. So this will be one of the major focus of this summit. The other big focus will be how does the society harness the potential of AI. And as our Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always emphasized that technology has to be democratized. Access to technology should be to everybody. In that same spirit, the Union Cabinet had approved India AI mission a few months back. The ministry is working on the foundations, the groundwork for setting up the India AI mission. All the 7 pillars on which the mission was approved are being worked upon. In a coming few months, we will be launching the mission so that the power and potential of AI can be harnessed in agriculture sector, in education sector, in healthcare, in medicine, in pharmaceuticals, in all the sectors that are relevant for our society. Thank you. Is there also a push to make GPay the global regulator for AI? What are your thoughts on this? And is there a consensus among countries? GPay is not a regulatory body. GPay basically is a body which is where the countries are collecting together, are representing each other to discuss and deliberate about AI, its potential as well as threats. The idea is to have all the major global bodies like the UN, like OECD, all of us like G7, all of us come together like G20, the Global South, all of us come together and come up with a consensus on this. So where's the G? How soon will a regulation on AI come in India? As I've said, the discussions are on. This requires political consensus. All the sections of the society should understand the threats as well as potential, and then only we should approach a legal kind of action. So where's the innovation center going to be open? We are working on all the 7 pillars, as I said. Let the groundwork be done, and then we will come out. Yes, that's part of the Global South. Forget the dream. हम लोग आखिर में बोलेंगे कि जो विक्रम ने आज पॉइंट एम्फसाइज करा है कि इंडिया को इस रेस में जो दौड़ है उसमें कैसे आगे करना है, क्योंकि जैसे कोरोना में उन्होंने एक उदाहरण दिया था, इंडिया ने वैक्सीन करके जो कि 2 और देश स्ट्रगल कर रहे थे, वेस्टर्न नेशंस. सो एआई में हमारी फाइट इज दैट वील हैव टू रियली वर्क हार्ड. एंड आई थिंक आई एनविसेज कि अगले 20 साल जैसे मोदी जी का एक है 2047, तब तक हम लोग एक एआई नेशन बन पाए. इसको हिंदी में थोड़ा सा हमको डाटा है क्या इंडिया के लिए, खास आम जनता के लिए कितना बेनिफिशियल है, इससे क्या नुकसान है? देखिए, आम जनता जो है एआई कंज्यूम कर लेगी, उसमें जनता ही कंज्यूमर है. जनता कंज्यूमर है, उसको एआई को प्रोवाइड करने वाले भी कंज्यूमर हैं. प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं. उसमें मज़ा नहीं है, वो तो आप आसानी से कर लोगे. मज़ा तब है जब आप खुद एआई बनाओ, अपना मॉडल बनाओ, अपने मॉडल को अपने डेटा के साथ ट्रेन करो, सो दैट आउटकम जो उसका आउटपुट आए एआई का वो अच्छा आए, रेलेवेंट आए. उसकी मार्केटिंग कहाँ होगी? उस अगर इंडिया में हो, इंडिया में. हाँ, अब आप पहले ये है हमें ज़रूरी कि इस फ्रेमवर्क में कि जो एआई स्टार्टअप्स हैं या एआई एमएसएमई है, वो किस तरह से अगर एक एआई मॉडल बना भी लिया. आपकी बात एक बात रोक करके फिर दिमाग से निकल जाएगा. एआई इससे पहले चाइना ने हमारे यहाँ लॉन्च कर दिया है.
ऑलरेडी हमारे इंडिया के इंडियंस जितने भी हैं भारतीय, उसका बड़े अच्छे से उपयोग कर रहे हैं और उसका बेनिफिट चाइना के पास जा रहा है। तो अब इसमें आपने जो प्रोसीजर और जो बना रहे तो इसको किस तरह से यहाँ पे लॉन्च करेंगे, कैसे बढ़ेंगे? हाँ, तो अभी बात ये है कि एआई कंज्यूमिंग नेशन बनना बहुत आसान है। आपको कैसे साथ दे दी, हाँ कैसे करोगे? हाँ, एआई कंज्यूमिंग नेशन बनना बहुत आसान है। आप चाहे चाइना से ले लो, चाहे यूएसए से ले लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इंडस्ट्री के ऊपर ब्लेम डालना गलत है। अगर एक दो कंपनियां हैं, दोनों के पास हेल्प डेस्क है, एक कंपनी जो है यूएस की चाइना से या ओपन एआई या किसी एआई लेयर को लेके अपना ऑटोमेशन कर देती है, और उसकी पर टिकट कॉल 14 रुपये से या 15 रुपये से गिर के 9 या 10 रुपये आ जाती है, तो वो तो आगे बढ़ेगी बढ़ेगी। और उसके अलावा उसके कंपटीशन की भी कंपनियों को वो 14-15 रुपये पे स्टिक नहीं कर सकते, उन्हें भी अपनी कॉस्ट गिरा के 9-10 में, वरना वो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। तो कीपिंग दैट इन माइंड, we cannot blame any other sector which is consuming the AI. It is the technology which is the IT space of India, IT industries of India, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना AI मॉडल करें, भारत सरकार के साथ काम करें, जिससे कि एक ट्रेनिंग डेटा का एनवायरनमेंट क्रिएट करा जा सके। जब वो ट्रेनिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, एक सेल्फ गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, हॉस्पिटल्स या वेरियस स्टडी सेंटर्स, एजुकेशन, स्किल सेंटर, हेल्थ सेक्टर, एक्सरे मशीन्स, ऑल अदर डेटा कैन बी गिवन टू डेजिग्नेटेड एंटिटीज़, जो एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, कि अगर आपने इनको डेटा दे दिया, ये इंश्योर करेंगे कि ये डेटा आपका कॉन्फिडेंशियल रहे, सिक्योर रहे। जब इस तरह का एक सेटअप बन जाएगा, आपने वादा कर दिया कि ये डाटा आपका सिक्योर है, और ये हमें विश्वास कैसे कर सकते हैं कि हमारा डाटा दूसरे के पास नहीं जाएगा, और ये सचमुच में हमारे आपके कहने के मुताबिक कि सिक्योर है? इसके दो पर्सपेक्टिव हैं। जब हम ट्रेनिंग डेटा की बात करते हैं तो हम मिलियंस बिलियंस ट्रांजैक्शन, मिलियन बिलियन पीपल की बात करते हैं। जब तक कि टेक्निकल चीज़ को हम नहीं जानेंगे तब तक कि हम श्योर नहीं हो सकते और सिक्योर नहीं महसूस कर सकते। हाँ, तो ये डेटा जो है एनोनिमाइज कर दिया जाता है, और उसके अंदर कुछ डमी डेटा भी इंसर्ट कर दिया जाता है। देयर आर टेक्निक्स, डिफरेंशियल प्राइवेसी एक टेक्निक्स है, कॉन्फिडेंशियल कंप्यूटिंग से है। देयर इज अनदर फ्रेमवर्क ऑल्सो जस्ट टू मेक श्योर कि इट डज नॉट हैपन। You can eliminate the problem by 98%, 99%. You cannot eliminate the problem by 100%. Keeping that in mind, there are methods and procedures available. लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको डेटा कैसे मिले। अगर एक DPDP एक्ट इन प्लेस है, कोई भी डेटा आपको देने को तैयार नहीं है, बोलेगा 10 रुपये कमाया और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरी दुकान बंद हो जाएगी, 250 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। तो 10 करोड़ के अपसाइड के लिए 250 करोड़ के डाउनसाइड पे कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम अगर ये कर पाए, टाइम से कर पाए, तो हमारे पास डेफिनेटली इंडिया बेस्ड AI मॉडल होगा। ये बात आपकी बिल्कुल श्योर है कि इससे विश्वास बनता है, हाँ, ट्रस्ट बनता है कि हाँ ये चीज़ कि अपने 10 रुपये के नुकसान के चलते 10 रुपये के फायदे के चलते वो 250 रुपये का नुकसान आप नहीं उठाओ। मैं आखिर में इसको जो हमारी चर्चा चल रही है, आज हम लोग ने पहले मिस्टर कौशल से बात करी थी, दैट वाज मॉड्यूल 1, और विक्रम से जो बात कर रहे हैं मैं उसको मॉड्यूल 2 बोलूँगा, क्योंकि दिस वाज एजुकेशन सीरीज़। एक हम लोग जो जनरली हम लोग पत्रकार इंटरव्यू कर रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग इन सम डिफरेंट बैंडविड्थ जो हम लोग का लेवल पे, और मलिक साहब के आग्रह पे हम लोग ने ज़मीन से और जो जन मानव तक जो बोलते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर और सब मंत्री आजकल बोलने लगे आखिरी पायदान तक, तो मलिक साहब का जो है वो मैं इनसे सहमत हूँ। तो ये हमारा आज मॉड्यूल 2 है, और आप लोग अपने कमेंट्स आई थिंक ज़रूर डालिए, जो भी सवाल आप लोग को इसमें आए तो हम लोग के जो चैनल पे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, सो दैट हम लोग विक्रम एंड अभी कौशल से उनसे उत्तर लेंगे, उनसे लेंगे, और फिर आपसे दोबारा हम लोग आएंगे एंड वील ब्रिंग यू अदर मॉड्यूल। सो दिस इज अवर हमारी एक पहल है आज। धन्यवाद। संजय अग्रवाल विद मिस्टर मलिक, SJ मलिक सर। थैंक यू।
है।